Today we will learn the algebraic methods or the different algebraic methods to solve simultaneous linear equations. Okay, so our first one is substitution method. This is the easiest method. Okay, so this is the easiest method. Any child can also do it if I teach it to them. Suppose for example it is given 3x plus 2y is equals to 9, one equation, and another equation is given 4x minus 4x plus 7y is equals to 8. So you first have to bring it in ax plus by plus c form is equals to 0. You can do it also, not do it also, but it is customary to write like this. So you give it name equation 1, and then minus 4x plus 7y minus 8 is equals to 0. This give name equation 2. Then give heading equation 1 and just write 3x plus 2y minus 9 is equals to 0. 3x plus 2y is equals to 9. 3x is equals to 9 minus 2y, and x is equals to 9 minus 2y by 3. Now write this as 3. Okay, now just write substituting 3 in 2. Why in 2? Because from 1 you have obtained 3, so you cannot put it back to 1. Okay, so you have to put it to another equation, that is 2. So minus 4 x के जगह में you put this 9 minus 2y by 3 plus 7y minus 8 is equals to 0. Now see, this has become a linear equation in one variable, and this a child can also do. So if you solve this, let's solve it. Minus 4 into 9 will be minus 28, 9 4 ja 36, minus 36, so it will be minus 36. Then minus plus 8y by 3, then my plus 7y minus 8 plus 7y minus 8 is equals to 0. So you just have to do LCM of it. 3, so minus 36 plus 8y will be in its place only, plus this is 1, so 3 7 ja 21y minus 8 3 ja 24 is equals to 0. So 3 will go up, gone. Minus 36 plus 8y plus 21y minus 24 is equals to 0. So minus 36 and minus 24 will give you minus 60. 3 went up, and 0 into 3 is 0. Okay, so 8 plus 29y minus 60 is equals to 0. So y is equals to 60 by 29. So you got the value of y. Now just write, putting y in anywhere you can put in 1, you can put in 2, you can put in 3, your wish. Okay, but you have obtained the answer from 2, so don't put it in 2, just, or you can put also in 2, no matter, anywhere you put. So 3x, it is best to put it in 3 because you will directly get the answer. X is equals to 9 minus 2 into 60 by 29 by 3. So x is equals to 9 minus 120 by 3 into 29. So whatever, just calculate it, x ka value will come. So you will get one x ka value, one y ka value. That is your answer. So isn't substitution method the easiest method? I hope that you have understood this method and you can do other sums with the help of this method. However, this method is not so widely used, but still you can use this method. Now we'll learn the elimination method. Now it is elimination method. Okay, now elimination method is a
very nice method, very direct, very fast method. Let's take these two equations only. This I have developed from my mind. 3x plus 2y is equals to 9. 3x plus 2y is equals to 9. Minus 4x plus 7y. Another equation is minus 4x plus 7y is equals to 8. So you have to write it like this: 3x plus 2y minus 9 is equals to 0, and then minus 4x plus 7y minus 8 is equals to 0. So this is equation 1 and this is equation 2. You name it like this. Okay, now you have to modify this equation. Sorry, I was mistaken. Just don't write it like this. You have to write it in this way. Actually for elimination method, even if the equation is given in any way, you have to bring it in the form of ax plus by is equals to, this side will be c, minus c or c, whatever. Actually your original is ax plus by plus c equals to 0, right? So you have to do it ax plus by is equals to minus c form, मीन्स कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो वो असली फॉर्म है, तो ये ठीक ही है. तो इसको 3x अगर ऐसे फॉर्म में दिया भी होगा तो भी इस फॉर्म में बदल लेना. सो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू अगर 9 लिखोगे, और इधर माइनस 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू अगर 8 लिखोगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे अगर आप 1 नाम दोगे या 2 नाम दोगे, तो आपको सबसे पहले ये नज़र में रखना चाहिए कि x और x में और y और y में किस में उल्टा साइन है. यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2y और 7y दोनों के पास सेम साइन है, प्लस प्लस, लेकिन x और x में देख रहा हूँ प्लस माइनस उल्टा साइन है. जैसे ही आप उल्टा साइन को नज़र करोगे तो डायरेक्ट एलिमिनेट करने के लिए उस वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेना, और एलिमिनेट करने के लिए बस इतना करना होता है कि इसका x का कोएफिशिएंट और इसका x का कोएफिशिएंट सेम बनाना होता है. और इसका रूल एकदम सिंपल है. इसमें जो है इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें जो है पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म कहानी. क्यों? क्योंकि 3 4 जा 12x आ जाएगा, प्लस 2 4 जा 8y आ जाएगा, और 9 4 जा 36 आ गया. और इसमें 4 3 जा माइनस 12x आ जाएगा, 7 3 जा 21y आ जाएगा, और 8 3 जा 24 आ जाएगा. एज ईजी एज दैट. अब तुम इसको एडिशन करोगे. क्या करोगे? एडिशन. यू आर डूइंग एडिशन. जब आप एडिशन करोगे तब यहाँ पे प्लस साइन मारना होता है ऐसे ब्रैकेट में. एडिशन मतलब एकदम जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसीलिए मैंने बोला था कि उल्टा साइन वाला कोई सिलेक्ट करना. यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता था कि इसको 7 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता था, तब y के लिए हो जाता, लेकिन मैंने x को एलिमिनेट के लिए सिलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि इसमें उल्टा साइन प्रेजेंट है. अगर उल्टा साइन प्रेजेंट है तो हमारे लिए आसानी होती है. तो हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस में जो है इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल हो जाएगा. 8, क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो 8 प्लस 21. यहाँ पे अगर माइनस माइनस भी होता तो भी मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता क्योंकि सेम साइन है. उल्टा साइन होने से उसी को सिलेक्ट करूँगा और कट कर दूँगा. तो 21 प्लस 8y हो जाएगा 29y, और ये आएगा 60. तो y इज इक्वल्स टू 60/29 आ गया. फिर सब्स्टिट्यूशन जैसा, जस्ट पुटिंग y is equals to 60/29 in any equation you want. You can put it in 1, you can put it in 2. In 2 you put and find out x. It is as easy as that. But the question arises, if the equation would be like this. Suppose another pair of equation is given. Hold here. Suppose another pair of equation is given. 7x plus 2y is equals to 6, and 6y minus plus 2x इज माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो आपको इसको ठीक फॉर्म में लिखना पड़ेगा. पहले 2x लिखना पड़ेगा, फिर 6y लिखना पड़ेगा. सॉरी हाँ ठीक ही था. 2x लिखना पड़ेगा, फिर 6y लिखना पड़ेगा, फिर इज इक्वल्स टू 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले x है फिर y है. तो इसका भी पहले x फिर y, और c को इस साइड में लाना पड़ेगा. अब यहाँ पे अगर आप नज़र डालोगे तो 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 हो रहा है, और 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 6 हो रहा है. तो इसमें उल्टा साइन किसी का है ही नहीं. इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस. तो किसको सिलेक्ट करना है? एलिमिनेट करने के लिए किसी को भी सिलेक्ट करो, फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर उल्टा साइन होता है तो उसको सिलेक्ट करो कि जिसका उल्टा साइन है. अगर उल्टा साइन नहीं है, सेम साइन है, तो किसी को भी सिलेक्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू,
तो मैं y को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि यहाँ पे 6 है नीचे वाले में y का कोएफिशिएंट, और इसमें 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मेरा क्या आ जाएगा 48x + 12y = 36, और इसमें आ जाएगा 4x + 12y = 6 7 जा 42, सॉरी 42x, हाँ, ये 6 2 जा 12 आया। अब हम लोगों को इसमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। सर क्यों सब्सट्रैक्शन कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ना उल्टा साइन। उल्टा साइन अगर होता तो मैं काट देता, तो उसके लिए एडिशन करना आसान था, लेकिन यहाँ पे उल्टा साइन है ही नहीं, तो मुझे उल्टा साइन जानबूझ के लाना पड़ेगा, इसीलिए माइनस कर रहा हूँ। माइनस का रूल ये है कि यहाँ पे जो भी साइन है उसका उल्टा यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब ये क्या होगा 42 - 4x हो जाएगा 38x, और + 12y - 12y कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 24। तो x = 24/38। इसको कैंसिल करके जो भी लाना है लाओ, फिर x का जो वैल्यू है उसको किसी भी एक इक्वेशन में बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ द वे यू डू। सपोज फॉर एग्जांपल आपको और एक इक्वेशन दिया हुआ है, सोचो सपोज आपको ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे बाखूबी नज़र रख सकते हो कि यहाँ पे माइनस माइनस साइन है x के सामने, लेकिन y के सामने माइनस प्लस है। तो मैं एलिमिनेट करने के लिए इसको सिलेक्ट करूँगा डेफिनेटली, क्योंकि मेरा दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकता हूँ एडिशन से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से -35x - 10y = 5 6 जा 30, एंड इसको हो जाएगा -6x + 10y = 7 2 जा 14। तो इसमें क्या होगा, मुझे का एडिशन करने से ही हो गया, तो ये ख़त्म। तो -41x = 44, तो x = -44/41। अब इसको किसी भी इक्वेशन में डालो, y का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, हम लोग हमेशा देख रहे हैं जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उसका उल्टा का वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं उसका उल्टा का वैल्यू, यहाँ पे x का एलिमिनेट किया था, y का वैल्यू डायरेक्ट आया था, फिर जिसका भी वैल्यू है आप बैठाओ, उल्टा का वैल्यू आ जाएगा। आई होप कि आपको सब इक्वेशन समझ में आया, आपको ये फंडा भी समझ में आया कि कैसे एलिमिनेट करना होता है। पहला बात तो ये, जिसको भी एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट को दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे वाइस वर्सा करो। और दूसरा चीज़ ये है, एलिमिनेट करने के लिए जिसको भी सिलेक्ट करना है, अगर पहले देख लो कि अगर डिफरेंट साइन है तो उसी को एलिमिनेट करने के लिए सोचो, मतलब इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। अगर उल्टा साइन है तो y को एलिमिनेट करो, यहाँ पे x को अटेम्प्ट मत करो, तो आपके लिए आसानी होगी। और लेकिन अगर उल्टा साइन है ही नहीं, ठीक है, तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो आपको तो सब्सट्रैक्शन करना ही पड़ेगा, तो ऐसे चलेगा। Now if you see this equation, here it is given, so you will randomly select which is to eliminate, because sign difference is not there. Sign difference means minus same sign is there, so select any. It is equation 1, it is equation 2, and multiply equation 1 with, suppose I want to eliminate y, or I want to eliminate x. Okay, let's eliminate x only. So with 3 we will multiply, and with 8 we will multiply, right? And 3 8 ja -24x you will get, 3 9 ja -27y is to -21, and 8 3 ja -24x, okay, and 5 8 ja -40y, okay, and 2 8 ja 16. Now as because it is same sign and we have to eliminate, we have to do subtraction. So bracket में माइनस लिखो, माइनस का उल्टा साइन प्लस, माइनस का उल्टा साइन प्लस, प्लस का उल्टा साइन माइनस, क्योंकि हमेशा सब्सट्रैक्शन के बाद ये करना होता है, लेकिन जब आप एडिशन कर रहे हो तो ऐसा कुछ करना नहीं होता है, डायरेक्ट होगा। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये प्लस माइनस कट गया, ये +40 -27, तो +13y आ जाएगा, और ये -16 -21, तो आपको -37 दे देगा। तो y = -37/13, ख़त्म आंसर। ठीक है, तो इसको किसी भी x में बैठा दो, x का ये मैंने कभी नहीं देखा है, हमेशा बोला है कि करो। तो इसको करना कैसे होता है, ऐसे लिखना होता है, पुटिंग y = -37/13, ठीक है, इन इक्वेशन एनी वन सपोज, सो -8 into -8x -9 into -37/13, ठीक है, = -7। तो -8x
तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया मैंने, 937 जा जो भी है। सो 333/13 इजिकल्स टू -7। तो x का वैल्यू यहाँ से, अब तो ये बच्चों वाला हो गया। आई होप कि क्लास 10 के लड़कों को ये दिखाना नहीं पड़ेगा, इसमें x निकाल दो, बस ख़त्म, x और y आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस मच। दिस इज़ द वे हाउ टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। Okay, now there will be a lot of practice. I'll give you the practices. Now there is another method called the cross multiplication method. So in cross multiplication method, what you have to do is, suppose you are given an equation a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. Simply you are given this. Then what you have to do is, you just have to write a1, a2, b1, b2, c1, c2. Simply, even if the equation is given in this form, minus 7x plus 3y is equals to minus 9, suppose. ठीक है, and another is given in plus 8x minus 3y is equals to 10. Still you have to write it in this form. So the first equation will be minus 7x plus 3y plus 9 is equals to 0, and another will be 8x minus 3y minus 10 is equals to 0. So a1, a2, b1, b2, c1, c2 you have written. So what you basically have to do is, you have to write x by, then you have to write minus y by, and you have to write 1 by, simply. Okay, and नीचे क्या होगा, I am using little bit more space to do it. Okay, so x by minus y by is equals to 1 by, डायरेक्ट। जब x by है तब x के कोएफिशिएंट्स को कवर कर दो, b1 इंटू c2 ऊपर से नीचे तक, और b2 इंटू c1, तो b1 c2 माइनस b2 c1, ख़त्म। अच्छा, जब y के नीचे लिखोगे, याद रखना माइनस y लिखना है हमेशा ऊपर में, ठीक है, ये चाहिए ही चाहिए, माइनस y लिखना ही है, ठीक है। तो क्या करो, y के कोफिशिएंट्स को कवर कर दो इसको, तो क्या होगा, a1 इंटू c2 ऊपर से हमेशा नीचे तक, a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1, ठीक है। और 1 बाई में क्या करो, कांस्टेंट को कवर कर दो, ठीक है, 1 बाई में कांस्टेंट को कवर कर दो, तो a1 b2 माइनस a2 b1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये ऐसा होगा, x बाई x के कोएफिशिएंट को कवर करके 3 इंटू माइनस 10, 3 इंटू माइनस 10 माइनस 3 इंटू 9, माइनस 3 इंटू 9 माइनस y बाई y को कवर कर देने से माइनस 7 इंटू माइनस 10, माइनस 7 इंटू माइनस 10 माइनस 8 इंटू 9, और 1 बाई हो जाएगा माइनस 7 इंटू माइनस 3 माइनस 8 इंटू 3। तो इसमें आपको जो मिल रहा है कि x बाई 3 10 जा माइनस 30 माइनस 27, सो माइनस 7 ऐसे प्लस 27 इज इक्वल्स टू माइनस y बाई माइनस 70 माइनस 72, और इसमें मिल जाएगा माइनस 1 बाई माइनस 7 3 जा माइनस प्लस 21, ठीक है, माइनस 24। तो आपको x का वैल्यू चाहिए, 2 कॉलम बनाओ, x बाई यहाँ पे क्या है माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 21 माइनस 4 इज माइनस 3, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाई माइनस 3 कैंसिल 1, आंसर आ गया। और y का वैल्यू चाहिए तो माइनस 1 बाई ये हो गया आपका माइनस 142 इज इक्वल्स टू बाई माइनस 3, तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 142 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, इसका आंसर डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू माइनस 142 बाई 3। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है
ठीक है, y के सामने जो माइनस है, ये जो y के सामने माइनस है ये इधर आ जाएगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस।